زینت امان سے اپنی بیٹی کا تعارف کرواتے ہوئے منیزہ بصیر حسن کے ذہن میں شاید یہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ ان کے ڈرائنگ روم میں رکھے گٹار میں اپنے وقت کی اس مشہور اداکارہ کی دلچسپی ان کی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کر دے گی۔ زینت امان لندن میں منیزہ کے گھر آئی تو گٹار دیکھ کر ان کا سوال تھا کہ یہ کون بجاتا ہے۔ منیزہ کے مطابق میں نے انہیں بتایا کہ میرے دونوں بچے نازیہ اور زہیر موسیقی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ نازیہ گھر پر ہی تھی، انہوں نے جب گانا سنایا تو زینت بہت خوش ہوئی اور کہا کہ نازیہ بہت عمدہ گاتی ہے، اس کی آواز منفرد ہے۔ منیزہ کے مطابق اگلے دن زینت امان نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے پروڈیوسر فیروز خان ایک فلم بنا رہے ہیں جس کے لیے انہیں ایک نئی آواز کی تلاش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں نازیہ جیسی آواز کی تلاش ہے۔ میرے انکار کے باوجود زینت امان نے اصرار کیا تو میں نے سوچا نازیہ کے والد سے بات کرتی ہوں۔ نازیہ کے والد اور ان کا خاندان روایت پسند ہے، مجھے انہیں راضی کرنے کے لیے تھوڑی بحث کرنا پڑی۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک دن نازیہ اسکول یونیفارم میں تھی، آدھی چھٹی کے بعد بدو کی ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں گئی تھی۔ اس نے اس وقت گانا ریکارڈ کرایا جس کے بول تھے، آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ گیت نازیہ حسن نے انڈین اداکار اور ہدایتکار فیروز خان کی فلم قربانی کے لیے گایا تھا، جس کے میوزک مینیجر بدو تھے، جنہوں نے اس گیت کا آئیڈیا جزوی طور پر امریکی گلوکار لورا بیس کے مشہور زمانہ گیت یو ول نیور فائنڈ سے مستعار لیا تھا۔ اس فلم کے دیگر تمام گیت انڈیا کے مشہور موسیقار کلیان جی آنند جی نے آشلا بھوسلے، محمد رفیع اور دوسرے مشہور گلوکاروں سے گوائے تھے، مگر سن 1980 میں بہترین گلوکارہ کا ایوارڈ نازیہ حسن کے حصے میں آیا۔ منیزہ بصیر حسن بتاتی ہیں کہ اس گانے کی ریکارڈنگ کے بعد نازیہ اپنی تعلیم میں مصروف ہو گئی تھی اور انہیں یہ یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس نے کسی انڈین فلم میں کوئی گانا گایا ہے۔ فلم ریلیز ہوئی تو گانا مشہور ہو گیا۔ تب ایک دن راج کپور کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ فلم فیئر ایوارڈ کی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بہترین گلوکارہ کا ایوارڈ نازیہ کو دیا جائے، کیا آپ لوگ یہ ایوارڈ وصول کرنے آ سکتے ہیں؟ نازیہ حسن نے جس عمر میں بہترین گلوکارہ کا فلم فیئر حاصل کیا تھا، یہ اس ایوارڈ کے 66 سال تاریخ میں دوبارہ نہیں ہوا۔ نازیہ حسن ممبئی کے جس ہوٹل میں قیام پذیر تھی، وہاں انڈین میڈیا کے نمائندوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ یہ ایوارڈ نازیہ کو راج کپور کے ہاتھوں ہی ملا تھا اور پھر بالی ووڈ میں شو مین کہلانے والے راج کپور سپیت فلمی صنعت کے ہر کامیاب پروڈکشن ہاؤس نے نازیہ حسن کو بلینک چیک کے ساتھ فلموں میں بطور ہیروئن کام کے لیے کئی آفرز بھی کی، لیکن جواب انکار کی شکل میں ملا۔ وجہ یہ تھی کہ نازیہ حسن کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں شوبز اور گلیمر کو برا تو نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسے تعلیم و تربیت سے بڑھ کر حتمی منزل بھی خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ سینئر اداکارہ بیبی تبسم سے نازیہ حسن کا ٹی وی انٹرویو ان کی شخصیت کا بہترین ٹریلر ہے۔ مذکورہ انٹرویو میں نازیہ حسن کے خاندانی پس منظر، تعلیم و تربیت اور ان کی شخصیت میں پائی جانے والی متانت اور اعتماد کا مکمل اظہار دکھائی دیتا ہے۔ میزبان کے شرارتی سوال سن کر نازیہ شرما رہی تھی، وہ سوال کا انتہائی مختصر لیکن صاف اور سیدھا جواب دے رہی تھی۔ میزبان پوچھتی ہیں، انٹرویو کی شروعات میں کیوں نہ ہم آپ کی خالص اور شدھ آواز میں وہ گانا سن لیں سازوں کا بغیر جس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس پر نازیہ کا روشن چہرہ ٹی وی سکرین پر نمودار ہوتا ہے۔ نازیہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں سوال ہے اور وہ تصدیق کے لیے پوچھتی ہیں، آپ جیسا کوئی، اور پھر پورے دھیان سے تھوڑا سا گاتی ہیں۔ شدھ آپ کی آواز میں، یعنی بغیر سازوں کے وہ گانا سن لیں جس نے تہلکہ مچایا تھا۔ بالکل ذرا گنگنائیے۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے، بات بن جائے۔ اگلا سوال کچھ یوں تھا کہ نازیہ، آپ میں نسوانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، میں آپ کو دیکھ رہی تھی تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ جیسے آپ کی آواز میں لچک ہے اور آپ کے انگ انگ میں ردھم پھوٹ رہا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے آپ نے ڈانس بھی سیکھا ہے۔ اس پر نازیہ کہتی ہیں، نہیں، ساری کارستانی جو ہے بغیر سیکھے ہوئے ہو رہی ہے۔ کارستانی کارستانی مطلب یہ قیامت
ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट जो है बगैर सीखे हुए सब चला आ रहा है, तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अगर आप थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए अगर वाकई गाना भी और सीख लें और डांस भी सीख लें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा? पता नहीं, अभी तो नहीं सीखा, और अभी स्कूल है ना तो इतना टाइम नहीं मिलता। नाजिया ने अमेरिकन स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद लंदन से बिजनेस कॉलोनी में डिग्री हासिल की। नाजिया हसन के छोटे भाई और म्यूजिक पार्टनर जुहेब हसन अपनी बहन को याद करते हुए बताते हैं कि तालीम मुकम्मल करने के बाद नाजिया अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ मंसूबों के लिए काम करती रही, जिसमें उन्होंने ख़वातीन के आलमी सरबराही मंसूबा और सियासी उमूर के शोबे में अहम खिदमात सर अंजाम दी। वो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ के लिए बच्चों के हकूक और तालीम के ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। वो इंतहाई ज़हीन, हसास और आला इंसान थी, जिसे इंसानों की महरूमियों, खास तौर पर बेसहारा बच्चों का हर वक्त ख्याल रहता था। इनके मुताबिक जब वो बहुत छोटी थी तो अपनी सालगिरह मनाया करती थी, लेकिन जब 14 वर्ष की हुई और माँ ने हिसाब रवायत इसकी सालगिरह मनाने के लिए तैयारियां शुरू करते हुए उससे पूछा कि लंदन में किन सहेलियों को दावत देना चाहोगी, तब नाजिया ने कहा कि माँ, मैं अब बच्ची नहीं हूँ जो सालगिरह मनाऊं। माँ बहुत हैरान हुई और उन्होंने कहा कि तुम अभी 14 साल की हुई हो, अपने आप को इतनी बड़ी क्यों समझ रही हो? नाजिया ने माँ से पूछा कि जिस तरह मैं कहूंगी आप मेरी सालगिरह उस तरह मनाएंगी। माँ ने हामी भरी तो नाजिया ने कहा कि ये केक और मेरे तमाम तोहफे बेसहारा बच्चों को दे दें। फिर ऐसा ही हुआ। जब तक नाजिया इस दुनिया में रही तो उसने अपनी सालगिरह इसी तरह मनाई। जुहेब बताते हैं कि सन 2000 में नाजिया इस दुनिया से चली गई और तब से हम लंदन, कराची और दुनिया के दूसरे मकामात पर नाजिया की सालगिरह इसके बताए हुए तरीके से ही मना रहे हैं। जुहेब का कहना है कि यूं तो नाजिया मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ी थी, लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि वो मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरी माँ थी। माँ बताती है कि नाजिया जब 2.5 साल की थी तो नानी ने इसे सुर्ख जूतों का तोहफा दिया। ये सुर्ख जूते नाजिया को बहुत पसंद थे और वो इन जूतों को पहनने की बजाय गोद में उठाए रखती थी। मैं उस वक्त 1 साल का था और बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो नाजिया मेरे बिस्तर के इर्द गिर्द चक्कर काटते हुए ये चाह रही थी कि मैं उठूं और उसके साथ खेलूं। जाहिर है मैं इतनी छोटी उम्र में नाजिया की फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था, तो उसने वो सुर्ख जूते मेरे बिस्तर पर रखते हुए ये चाहा कि मैं अपनी सबसे कीमती चीज तुम्हें दे देती हूँ, अब तो उठो। बड़ी बहन को याद करते हुए जुहेब ने एक और वाकया भी सुनाया। उनका कहना था, एक मरतबा हम लंदन में किसी शॉपिंग सेंटर में थे। इस वक्त मैं 5 साल का था और नाजिया 6.5 वर्ष की थी। इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ने मुझे एक तरफ धकेल दिया और मैं डर की मारे सहम गया था। तब नाजिया ने इस खातून से कहा कि अगरचे आप बूढ़ी हैं, लेकिन आप मेरे भाई को यूं धकेल नहीं सकती, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। नाजिया और जुहेब की जोड़ी जनूबी एशिया में जदीद मौसीकी के इनकलाब का बास बनी है। दोनों इस खिते में पॉप म्यूजिक के बानियों में शुमार किए जाते हैं। बहन भाई की इस जोड़ी ने खिते में निस्फ सदी से राइज मौसीकी की रवायत बदली थी। सन 1931 में पहली फिल्म आलमी आरा से लेकर सन 1980 तक जितने भी तजर्बात किए गए थे, नाजिया हसन की आवाज और उसके साथ साज बजाने का तजर्बा एक खूबसूरत और मुनफरिद म्यूजिक साबित हुआ। गुलकार जवाद अहमद कहते हैं, मैं इस डीप बर्मन और किशोर कुमार का गीत मेरे सपनों की रानी और पाकिस्तान में कोको कोरिना जैसे सुहेल राना ने अहमद रुश्दी से गवाया था। खिते में पॉप म्यूजिक की शुरुआत किरार दिए जा सकते हैं, लेकिन नाजिया, जुहेब और बदू ने इस खिते में जारी म्यूजिक की रवायत को बदला। तीनों ने जिस अंदाज की मौसीकी दी, इसे परिस्तारों और मीडिया ने नाजिया जुहेब पॉप म्यूजिक का नाम दिया। नाजिया और जुहेब ने एक साथ 5 एल्बम किए, जिनमें पहला डिस्को दीवाने था जो सन 1981 में सामने आया और उसमें 10 गीत शामिल थे जो सब सुपर हिट हुए। नाजिया और जुहेब के इस पहले एल्बम की रिलीज के पहले दिन सिर्फ मुंबई में इसकी 1 लाख कॉपियां फरोख्त हुई थी। डिस्को दीवाने ने अपनी रिलीज के 15 दिन में प्लाटिनियम टाइटल जीता और उसके बाद ये इजाज तीसरे हफ्ते में डबल प्लाटिनियम में बदल गया था। ये एल्बम 14 ममालिक, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील, रूस, जनूबी अफ्रीका, फिलिपाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, लातीनी अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, वेस्ट इंडीज और अमेरिका शामिल है। टॉप नाजिया और जुहेब से एक मरतबा पूछा गया कि आपका म्यूजिक खालिस मगरबी नहीं है और उसे मशरकी भी किरार नहीं दिया जा सकता कि आपने फ्यूजन किया। इस पर नाजिया ने कहा था कि हम तो मासूमियत के साथ अपने दिल की बात मान रहे थे, दिल से उठने वाली आवाज को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिसे पजीराई मिली। दोनों से जब पूछा जाता कि आप काम कैसे करते हैं तो वो कहते थे कि हम भाई बहन तो हैं, साथ दोस्त भी हैं, हम बहस करते हैं, लड़ते हैं, इस तरह म्यूजिक तैयार करते हैं।
नाजिया और जुहैब की जोड़ी में शायरी नाजिया का काम था और धुनें बनाना जुहैब की जिम्मेदारी होती थी। नाजिया भी धुनें बनाती थी, लेकिन जुहैब के पास वेटो पावर थी, यानी वो धुन को मुस्तरद या कबूल करने का मैंडेट रखते थे। नाजिया हसन अपनी जिंदगी में मौसीकी की तरफ रागिब होने का क्रेडिट मौसीकार सुहेराना को देती थी। वो बताती थी कि कराची टीवी से सुहेराना बच्चों के लिए मौसीकी का प्रोग्राम संग संग चलते रहना करते थे और उन्होंने जुहैब के साथ इस टीवी शो से गाना शुरू किया था। हम दोनों उनकी मुस्तकिल टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन जब लंदन से कराची आते थे तो उस शो में शामिल हो जाया करते थे। मोनिजा बताती है कि पहली मर्तबा प्रोड्यूसर सुल्ताना सदीकी ने नाजिया को इस प्रोग्राम में बिठाया था और उसके बाद जुहैब भी प्रोग्राम में शामिल हो गए थे। सुहेराना ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि मुझे नाजिया हसन को याद करते हुए फख्र महसूस हो रहा है। नाजिया से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो उस वक्त वो 6 या 7 साल की होगी। वो बहुत ही ज़हीन और खूबसूरत बच्ची थी। मैं उसे जो भी धुन याद करवाता वो उसे फौरन याद कर लेती। वो मेरे प्रोग्राम में शरीक इन 2-3 बच्चों में शामिल थी जिन्हें मरकजियत हासिल थी। सुहेराना ने बताया कि नाजिया और जुहैब को मेरे गीत अजबर थे। दोनों खास तौर पर मेरे 2 गीत आजा चांद न जा और गाए जा कोयल कुकू शौक से गाते थे। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर जावेद जवार का, जिनके नाजिया के वालिदैन से करीबी ताल्लुकात है, कहना है कि अगर मैं नाजिया को याद करूं तो मैं ये कहूंगा कि वो छोटी सी लड़की जिसका दिल बहुत बड़ा था, वो एक बहुत बड़े दिमाग की भी मालिक थी। वो एक बड़ी आर्टिस्ट तो थी, लेकिन इसके साथ साथ वो एक अजीम इंसान भी थी। वो एक इंतहाई हसीन रूह थी जो दुनिया में आई थी। इसमें जानने और सीखने की सलाहियत थी। इसे आलमी हालात से दिलचस्पी थी। सबसे बढ़कर वो इंसानों की भलाई के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा रखती थी। इसने अपनी मुख्तसर जिंदगी में इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ किया। इनका कहना था कि हमें इस से भुलाना नहीं चाहिए और इसे याद रखने के साथ साथ इसके मिशन को भी आगे बढ़ाना चाहिए। नाजिया हसन जिंदगी के आखिरी दिनों में फेफड़ों के कैंसर के खिलाफ जंग लड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुई। जब वो दुनिया से गई, इनका इकलौता बेटा अरेज हसन सिर्फ 2-2.5 साल का था। अरेज का कहना है कि इनके दिलो दिमाग में माँ की मदद से इक्का दुक्का यादें हैं। वो मुझे चिड़ियाघर ले गई थी। इनका कहना था कि मेरी वालदा को गोल्डन वॉइस और पायनियर ऑफ पॉप म्यूजिक के नामों से याद किया जाता है। इनके लिए मेरे पास भी एक नाम है, माँ। वो मेरी माँ थी। मेरी माँ जब तक इस दुनिया में रही, इसने इंसानों की भलाई के मुतालिक सोचा भी और उनकी महरूमियत को दूर करने के लिए कोशिश भी की। ये कोशिश मैं भी जारी रखूंगा।